कि 1965 वाला साहब ने कहा मैं नहीं जाना जी इथों। उन्होंने कहा मैं तो नहीं जाना भाई, जिन्हें जाना तुम चले जाओ। सफ़र मिलिट्री ने इधर डायरेक्ट बॉम्ब फॉलिंग की, जिसकी वजह से इसकी ये सारी खस्ता। रिसेंटली हमारी जो है डीजी वॉल सिटी कामरान लशारी साहब से भी एक दो टेबल टॉक्स हुई। बरकी पहुंच गए जी हम। ये मैं हूँ, ये डॉक्टर साहब हैं। बाजवा साहब डॉक्टर साहब सुबह निकल पड़े हम, और आज मेरा ख्याल है कि हमारा जो सफ़र है वो सरहदी गांव पढ़ाना की तरफ है, और ये पढ़ाना तजारती मरकज़ था सिखों के दौर में बहुत। ये फार्म हाउस आंदा ना इधर, इधर स्टेडियम है अब्दुल कादर क्रिकेट स्टेडियम, इधर भी टाउन बन गया। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 3 ਗਲਾਸ ਲੱਸੀ ਪਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਚੜਿਆ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਇਹ ਰਿਹਾ। ਲੱਸੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਨਮ ਨੇ ਸਰ ਕੋ ਨਸ਼ਾ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਭਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਫਟਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੀਨੇ ਆ, ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਪੀਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਵਾਈਟ ਵਾਈਨ ਕਿਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੁਸਤ ਵੀ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਈਟ ਵਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਕਰਦਾ। ਦਾ ਵਾਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਫੇਦ ਸ਼ਰਾਬ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਲੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤੇ, ਔਰ ਲੱਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਰਗੀ ਲੱਸੀ ਪੂਰੀ दुनिया ਤੇ नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं जी। आज का हमारा जो जी टूर है ये है पढ़ाना गांव, बरकी रोड के ऊपर जो ज़ीरो लाइन के ऊपर आखिरी गांव है पढ़ानिया, वहाँ पे हम जाएंगे और वहाँ पे आपको हम ये दिखाएंगे। वहाँ पे एक तकरीबन 350-400 साल पुरानी एक हवेली है, हवेली ज्वाला सिंह के नाम से बहुत फेमस हवेली है, तारीख़ी हवेली है, वो आपको दिखाएंगे। और जो 1965 की जंग में वहाँ पे कुछ हालात जिस तरह के थे, और पढ़ाना का गांव जो था वो गवर्नमेंट के इंडिया की फ़ौज के कब्ज़े में चला गया था, उसकी पूरी तफसील आपको देते हैं इस वीडियो में, हमारे साथ जुड़े रहें। ग्रेट सर कैसे हैं? हेलो ठीक है। मैं इतों निकल लग्या अपना हवेली नहीं अपनी सरदारां वाली, वो दोस्त है दो विजिट विजिट करना आके हैं तो तू फिर डेरे ते ही है ना, तेनू पहले चुकी डेर तो चुकी है, फिर जाने सरदारां नाले डेंगी है, सरदारां का मैनू डेंगी होया, मैं तेन निबल है दे आना ही होना, और उन्हें की कहना। जी आज के हमारे सफ़र के रूह रवां होंगे और हमारे होस्ट होंगे चौधरी सईद अहमद सिद्धू साहब, जो कि बहुत पब्लिक फ़िगर हैं और इस बरकी डियारा यूनियन कौंसिल के मुस्लिम लीग नून की तरफ से चेयरमैन भी हैं, और बहुत खूबसूरत आदमी है, नेक और खुदा तरस आदमी है, और शायर भी हैं। इनसे इस इलाके की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं और इनके साथ जो है पढ़ाना गांव का विज़िट करते हैं। ये हमारे साथ होंगे, चलें चलते हैं। अफसर 65 ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਹੰਡਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਹਲੇ ਜੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਆਰਮੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੰਡਿਆਰੇ ਵਿਆਹਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਆਰਮੀ ਦਾ, ਉਹ ਹੰਡਿਆਰੇ ਵਿਆਹਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੰਡਿਆਰੇ, ਕਿਉਂ ਹੰਡਿਆਰੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੰਡਿਆਰਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਾ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, खाली कर दो। ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿੰਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਆਵਾਮ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ, ਟੈਂਕ ਤੋਪ ਗੋਲੇ ਗਾਲੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਨਾਬਲੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕੱਢ ਕੁੱਟ ਗਤੀਆਂ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਨਾਬਲੀ ਆ ਰੋਈ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੋਈ ਦੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਬੰਬ ਵੱਜਾ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਗਿਰਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਰੋਈ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਆਪਣਾ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜੀਪ ਇੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਨਾਬਲੀ, ਜਦੋਂ ਰੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਨਾ ਆਰਮੀ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਂ ਜੀਪ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ 4 ਜਵਾਨ ਨੇ ਟੋਟਲ। ਹਾਂ 4 ਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਪ ਜਾਂਦੀ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ हर पासे फायरिंग ਹਰ ਬੰਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਜੀਪ ਨੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਾ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਡਿਫੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਲਾਕੋਂ ਦੀ ਕਰਾਸ ਕਰੂਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਹੀ ਸਹੂਲਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਕਰਾਸ ਕਰੂਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ BRB ਤੱਕ ਨਾ BRB ਨਹਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਫਿਰ ਸਟੇਬਲ ਆ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ नहीं तो ਇਹ ਫਿਰ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਾਉਂਡ ਬਾਉਂਡ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਆਮ इतने पेंदी है। ਇੱਥੇ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 4 ਕੋਨੇ ਆ ਨਾ ਚੌਂਕ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਜੋਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਸੁੱਖਾ ਮੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਵੇਨੇ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ था ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे चोर साहब हैं, ये हमारे चोर साहब हैं, इनके साथ हम आए हैं इनके यूनियन कौंसिल में विजिट करने के लिए। सरदार सिंह की हवेली, ये सामने हवेली है, भी आपको विजिट कराते हैं। तो ये चोर साहब हैं, इनको हम यहाँ पे आके तो गुम हो गए चोर साहब। नहीं, हमें तो हमें आपको देख के तो बड़ी खुशी हुई है कि लोग आपके बड़ा दीवाने हैं आपके। तो माशाल्लाह माशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ पे मौजूद हैं पढ़ाना गांव में। ये बॉर्डर के बिल्कुल पास है और इस गांव की बड़ी ज़बरदस्त तारीख है। और बताया जाता है कि ये इस इलाके के तकरीबन पूरे इलाके की यहाँ भी मेन अदालत, यानी यहाँ का मेन ये मरकज़ था इस पूरे इलाके का, पाकिस्तान इंडिया बनने से पहले। और यहाँ पे बहुत बड़ी एक हवेली है जो उस वक्त यहाँ की अदालत का किरदार अदा करती थी। उस हवेली के जो मालिक हैं सरदार इरफान साहब, आज हम उनकी आस्थाने पे मौजूद हैं। और मैं जो है ये माइक हैंड ओवर करता हूँ नीम गुमन साहब। सर आप इसको ज़रा कंटिन्यू करें। मैं तो और इसको सबसे पहले यादगार बनाते हैं इस गुफ्तगू को। मेरे लिए तो एक प्लेयर मोमेंट है। मुझे लग रहा है कि मैं अपने ख़ानदान में बैठा हूँ, क्योंकि अपने घर में बैठा हूँ। चौधरी सईद साहब के साथ सुबह का मैं सुस्त था थोड़ा सा। चौधरी साहब महसूस कर रहे होंगे कि बिल्कुल ही सुस्त है, क्योंकि बाजवा साहब ने मैंने सवेरे सवेरे 3 गिलास लस्सी पे आ देते। अच्छा, तो वो वाइट वाइन पीने के बाद मेरी सूरत हाल ज़रा ना पतली हो गई थी, तो मैंने ये 2 कप आपका, एक चोरी चकारी का पिया है वैसे के लिए, तो दोनों कप मैंने चाय की पी। मैं ताज़ा दम हूँ। तो इरफान साहब के साथ, सरदार इरफान साहब के साथ, और सरदार असदुल्ला साहब और चौधरी साहब के साथ। सरदार साहब, तो आप बताएं अपने बारे में। आप बड़ी शानदार बातें कर रहे थे चाय पे, अल्लाह करे वही फ्लो कायम रहे। तो कैसे आपका सरदार ज्वाला सिंह सिद्धू के साथ कैसे ताल्लुक़ है, और आप किस तरह यानी कि दायरा, यानी कि एक बस्ती से निकल के कूचा मोहम्मद में पहुँचे, और किस तरीके से आपका ये सफ़र है, थोड़ी सी इसकी तफसील बताएं ताकि दिलचस्पी पैदा हो सुनने वालों के लिए। जी जी, बहुत शुक्रिया गुमन साहब, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। हवेली सरदार ज्वाला सिंह संधू पढ़ानिया में आप तशरीफ़ लाए, इसके लिए हम आपको खुशामदीद कहते हैं, जी आए को कहते हैं। तो इस हवाले से जो तारीख़ी एक ये विरसा है बहुत हमारे पास जो पढ़ाना में है। तो बिफ़ोर पार्टीशन ये बिटवीन पढ़ाना एंड अमृतसर, इनके दरमियान जितने ये देहात थे, मुआज़ात थे, जितने इलाके थे, उनका ये एक कैपिटल था पढ़ाना, ये एक दारुल खिलाफा था पढ़ाना। तो इस दारुल खिलाफा में पढ़ाना में सरदारों की हुकूमत थी। महाराजा रणजीत सिंह के जो थे हमजुल्फ़ सरदार ज्वाला सिंह संधू, बीबी जिंदा कौर के जो थे अपना ना बहनोई, तो वो उस हवाले से यहाँ पे उन्होंने, वो उनके चीफ कमांडर भी थे और रिलेटिव भी थे सरदार ज्वाला रणजीत सिंह के, महाराजा रणजीत सिंह के वो थे, हमजुल्फ़ भी थे और चीफ कमांडर भी थे पढ़ाना में। तो यहाँ पे तफवीज़ किया गया था इस इलाके में जितना टैक्स इकट्ठा करना होता था, और इस इलाके की जितनी बेहतरी के लिए ये सरदार फैमिली ने यहाँ पे सोचना होता था, तो ये पढ़ाना के सरदारों के ज़िम्मे यहाँ पे एरिया बहुत बड़ा होगा अमृतसर तक, और सारा अमृतसर और लाहौर के दरमियान सारा एरिया, और उसका वो कैपिटल यहाँ था। यहाँ पे अदालत लगा करती थी, बाकायदा अदालत कायम थी। 6 माह की सज़ा यहाँ पे हमारे बड़े जो फोर फादर हमारे बड़े हैं, आबा जदाद, वो सज़ा दे सकते थे 6 माह की। 6 माह से ज़्यादा सज़ा देनी होती थी तो फिर लाहौर उसको रेफ़र किया जाता था, लाहौर की अदालत में किया जाता था। तो ये उसका पस मंज़र है तारीख़ी
तो यहाँ पे जो तकरीबन ये 350 साल हो गए हैं इस हवेली बने को, 350 पौने 400 साल हो चुके हैं इस हवेली को बने हुए। पै दर पै जब मामला चलते हमारे आगे चलते गए, चलते चलते हमारी पीढ़ी में आके हमारे जो दादाजी थे सरदार हरचंद सिंह संधू, सरदार हरचंद सिंह संधू की 2 बीवियाँ थी। वो जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और साथ मेरी दादी ने कर लिया और साथ मेरे वालिद साहब ने, ये तीनों ने कर लिया इस्लाम कबूल। तो जो उनके 3 बेटे थे और 2 बेटियां, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। आफ्टर पार्टीशन फिर वो इंडिया माइग्रेट कर गए और हम इधर ही रहे। आपके दादाजी के? मेरे दादाजी के बेटे 3, उन्होंने नहीं किया? उन्होंने नहीं किया। 2 बेटियों ने और 3 बेटों ने अच्छा, इस्लाम वो कबूल नहीं किया। पार्टीशन के बाद उधर चले गए? और मेरे दादाजी की डेथ हो जाती 1942 में रमज़ान शरीफ में, अच्छा। रोज़े की हालत में। कितना अरसा वो मुसलमान रहे? वो तकरीबन रहे कुछ 6 माह मुसलमान रहे। वाह। जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया दादाजी ने, तो वो बादशाही मस्जिद में जाके वहाँ पे उन्होंने इस्लाम कबूल किया। यहाँ के मुसलमानों की मैयत में जाके उन्होंने जाके सारा वहाँ पे इस्लाम कबूल किया। उनकी जनाबलीना गुनियत तालिबीन, उसकी वो स्टडी करते थे। हज़रत शेख सादी शराजी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बुनियाद तालिबीन, ये किताबें वो स्टडी करते थे। बड़े पढ़े लिखे थे मेरे दादाजी, और उन्होंने पढ़ लिख के तहकीक करके सारा मामला करके तो फिर इस्लाम कबूल किया। और उसी ज़माने में उन्होंने हमारे यहाँ पे जगह दे के, जब वो गैर मुस्लिम थे तो उसके दौरान ही उन्होंने यहाँ पे मस्जिद भी बनवाई दादाजी ने, जब वो गैर मुस्लिम थे। तो ये मुशाहिदे में वहाँ पे बात आई है कि वो कह रहे, लोगों ने बताया कि वो मस्जिद में जाके बाहर जहाँ पे जूते उतारे जाते हैं ना, वहाँ पे बैठे रहते थे दादाजी। वहाँ पे खुतबा सुनते थे मौलवी साहब का, वहाँ पे वो प्रीच सुनते थे और वहाँ से वो तबलीग सुन के तो सारा इस्लाम उन्होंने कबूल किया। वाह। हाँ, यहाँ पे एक ज़माने में बताते हैं कि सिखों ने झटका कर दिया था, पढ़ाना में झटका कर दिया, तो बड़ी दिल आज़ारी हुई मुसलमानों की। तो दादाजी ने अपने घर से गाय दे के तो गाय को हलाल करवाया चौक में। उन्होंने कहा इनको हलाल करें, मुसलमानों को कहा आप हलाल करें इसको। हवेली के बारे में अब क्या है, इसका क्या कर रहे हैं आप? कोई बड़ी प्रोग्रेसिव आपकी सोच है, आप समझते हैं? हवेली के बारे में जी हमारी सोच यही है कि हमने इसको ना गवर्नमेंट लेवल पे हमने कहा कि गवर्नमेंट हम देने के लिए तैयार हैं गवर्नमेंट ये को। कितनी जगह है जो देना चाहते हैं आप? ये 8 कनाल जगह है। अल्लाह जन्नत नसीब करे सरदार फारूक अहमद लगारी साहब और जाफ़र खान लगारी साहब, उनके साथ बीवी थी मीना लगारी। तो वो विलिंग थे। ये आज से बात है तकरीबन ना 25-30 साल पहले की बात है, 30 साल इस बात को है। वो उन्होंने इंटरेस्ट शो किया था कि ये हवेली हमें दे दे, हम ख़रीद लेते हैं आपसे। तो तब हम नहीं माने थे, हमने कहा नहीं, हमने नहीं ये बेचनी। पर्दे का भी है आलम उस जमाने च सी पढ़ाने दे विच। ਇਹ लोग इतों के आईनी शायद इनू भी दसते हैं कि जनाबली ना मूँह मोड़ के जिसले बीबियाँ बाजार थाई लंघदी होंदियां सी, सारे हुक्म हैगा सी कि मूँह नालियां वाल कर लो, कोई बीबियां नहीं वेखेगा। तो बीबियां पर्दे में जाती होंदियां सी, चाहे सरदारां दी होन या मुसलमानां दी होन। तो देखो जी 65 च ऑक्यूपाई इलाका हो गया सारा, इत्थे कब्जा हो गया 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ बरकी तक सारा कब्जा हो गया। इंडियन फोर्सेस ने, इंडियन आर्मी ने इन्हू बड़ा नुकसान पहुँचाया। बाद 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ इतों माइग्रेट कर गए, लाहौर चले गए। अब अनलॉक हो गई हवेली, इतने कोई है नहीं सी। लोगों ने इतने खजाने की तलाश के विच ना इस हवेली को ना खाना खराब करता लोगों ने भी। तो 1965 च वाला साहब ने कहा मैं नहीं जाना जी इतों। उन्हें कहा मैं तो नहीं जाना भाई, जिन्हें जाना तुम चले जाओ। तो वो पिंड च भी लोगों ने वेखदे होया कि उन्हें कहा सरदार नहीं जान दिया कि असीं भी ना जाइए। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਜਾਈਏ। 350 बुढ़ियाँ औरतां बच्चे मर्द इत्थे रह गए पढ़ाने च। बाकी पढ़ाने च लोग दौड़ गए लाहौर दे विच, अपना साजो समान मज्जां लैके सारी चीज़ां लैके हर चीज़ ला के निकल गए। इत्थे इंडियन आर्मी नूं पता लग गया उन्होंने कि उत्थे कोई मूवमेंट हैगी है हवेली दे विच, क्योंकि बलवाई जिहड़े हुंदे सन उत्थों लुट्टण वास्ते सिख, ਇਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਦ ਜ਼ਰਾਤ ਹੈਗੇ ਸਨ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਨਾਹ ਲਈ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸਤਾ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜਾਣੇ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸੰਧੂ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਇਹ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਭਰਾ ਜੇ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਭਰਾ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈਗਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਪੜਾਣੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਬਾਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਟੱਲਾ ਤੋਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇ ਫਿਰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ।
ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਮਾਰੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਰਾਂ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਲਾਹੌਰ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੂੰ ਬਹਿਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਧੱਬਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ, ਤੇ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਕਰਾਤਾ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਸੇ। ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਜੀ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅੰਬਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਔਰ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਛੜਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਜ਼ਾਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੁਸਨ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਵਰਗੀ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਇਲਾਕਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੌਜਦਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਰਣਜੀਤ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਗਏ ਬੜੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਲਗਾਮ ਫੜ ਲਈ, ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਵੀਰ ਤੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮਾਲ ਸੀ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਲ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂ ਲੁੱਟਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭੈਣ ਉੱਥੇ ਵੇਚ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਂਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਆਂਦਾ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟੀ ਤੇ। ਇਹ ਵਜ਼ਾਦਾਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਵਜ਼ਾਦਾਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਸੀ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਓ ਉਧਰੋਂ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਾ, ਸਹੀ ਪੁੱਛੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਭਾਈ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਅਖਵਾਨ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਹੀ ਨੇ? ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਉਧਰ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਧਰ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਗੌਨ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਸਿੱਖੋ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈ। ਹਟਾਰਾ ਚੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਫਿਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੇਖੀ ਹੈ? ਵੇਖੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਾ ਪੜਾਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ 80 'ਚ 1980 'ਚ ਜਿਸਲੇ ਆਏ 1980 'ਚ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਕਹੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ 1980 'ਚ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਐਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਰਾਬ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਫਲਾਣੇ ਫਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਰੋੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਬਸ। ਹੁਣ ਰੋਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਾ, ਚਾਚੂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਆ ਜਾਓ, ਹੈ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪको पता कि अगर गवर्नमेंट हमायत करे मैं तो हो सकਦਾ किसी के नहीं पता। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਗਏ ਹੋ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋ ਜਾਂ ਉਹ ਘਰ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਮੁੰਤਕਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ 2 ਭਰਾ ਸਾਂ, 2 ਭੈਣਾਂ। ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਧਰ ਆਓ ਕਮੋ ਪੇਸ਼ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। 400 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਪੇਂਟ ਵੇਲੋ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ ਲਾਓ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਸੋਨੀ ਬੇਟਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੂੰ ਪਾ ਸਾਰੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਡੇਰਾ ਸ਼ੇਰਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। इससे वेले की मतलब यार ये भी बताया जाता है कि जब ये 1965 की जंग लगी थी ना, तो इस पढ़ाने गांव के ऊपर ना कब्ज़ा कर लिया था इंडियन आर्मी ने। पढ़ाना, बरकी, हडियारा, ये सारे गांव जो है ना ये इंडियन आर्मी के कब्ज़े में आ गए थे। ये सामने हमारे ये चौर साहब हैं, इनका गांव है बरकी हडियारा, तो इनका भी गांव आर्मी ने कैप्चर कर लिया था इंडियन आर्मी ने। तो उस वक्त लोगों ने बड़ी लूट मार की थी और इस हवेली को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया था इंडियन आर्मी ने। इनकी छतें वगैरह चीज़ें सब तबाह कर दिया था इसको, इस हवेली को। और ये
अपने दौर का उस वक्त का कह लें कि एक जिस तरह क्या कह लें कि ये बादशाहों का ये क्या कहते हैं बसेरा था। यहाँ पे पूरा इलाका इस हवेली की निगरानी में चलता था और यहाँ से फ़ैसले होते थे लोगों की जानो माल के। ये देखें इसकी सराइयाँ बनी हुई हैं छोटी छोटी, ये भी 400 साल गुजर गए हैं तो देखें अभी तक जूं की तूं हैं चीज़ें। तो ये जो इसकी हालत ख़राब है ये सिर्फ इस वजह से है कि इसके ऊपर कब्ज़ा किया गया है और इसकी छतें इसको यानी कि पूरे इसकी ये दीवारें देखें यार, ये मेरा ख़्याल है ये इतनी तकरीबन ये 3 फुट चौड़ी इसकी दीवार है, 3 फुट चौड़ी दीवार। आज इस हवेली की हालत को देखते हुए ना एक दुख भरी दास्तान लिखी जा सकती है कि आज से 300 साल पहले ये एक पूरे इलाके का मरकज़ था, यहाँ पे अदालत रखती थी, यहाँ पे आबाद थी वो दुनिया, एक शहर आबाद था। और आज इसके रहने वाले और आज के जदीद दौर में हम इसको आज के मालकान या आज के जो इनके वारिस हैं वो इसको महफूज करने से भी कासिर हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इसको वो जो हैं इसके मालकान इसकी हिफाजत कर सकें ताकि ये विरसा कायम रहे। ये हवेली तकरीबन 16 कनाल के ऊपर ओवरऑल इसका रकबा है और इसकी सबसे मज़े की बात यह है कि इस हवेली के नीचे बेसमेंट भी है और बेसमेंट की भी हालत बहुत ख़राब है क्योंकि बहुत से लोगों ने जब 1965 की जंग में यहाँ पे कब्ज़ा हुआ था तो इसके नीचे भी बहुत ज़्यादा लोगों ने खुदाई की कि शायद इसके नीचे जो है वो बहुत खजाना छुपा हुआ है। ये क्योंकि सरदारों की हवेली थी, बादशाह थे उस वक्त यहाँ पे वो कह लें एक तरह के, तो इसकी खुदाई भी नीचे से भी इसकी खुदाई की गई है ताकि इसमें कोई खजाना निकले। तो बहुत बुरी हालत है इसकी। मैं यार आप लोगों को व्यू असल में को देना चाह रहा हूँ कि मैं को व्यू आपको दूँ। ये देखें यार 4 फुट जो है ना ये चौड़ी दीवार है, ये 4 फुट से कम नहीं है, ज़्यादा हो सकती है। कोई आसान नहीं मुझे मिल रहा है इन छतों के ऊपर जाने का। चारों यूनिट्स की चारों तरफ इसकी चबूजियाँ बनी हुई हैं, इनके ऊपर जाने का मुझे कोई असल में मिल नहीं रहा पॉइंट। मैं आपको छत से दिखाता। ये हवेली की हालत तो बहुत बुरी है। तो हमारे साथ यहाँ पे सरदार साहब के बेटे मौजूद हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस हवेली की जो है वो वजह क्या है और इस हवेली के बारे में उनके बेटे से हम जो है जानते हैं कि उनका क्या ख्याल है इसके बारे में और इसको प्रिज़र्व करने में। सरदार सादुल्लाह साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं जो इस हवेली के अगली नस्ल के जो मालिक हैं। इनसे ज़रा थोड़ा सा बताएं बॉस, आप तो मम्मी डैडी बन गए हैं तो इस हवेली की कैसे हिफाजत करेंगे? सबसे पहले तो मैं जी बताता चलूँ ये हवेली का नाम है जी हवेली सरदार जवाला सिंह संधू। सरदार जवाला सिंह संधू जिनके नाम से ये हवेली मंसूब है वो हमारे जो है एंसेस्टर थे, हमारे फोर फादर थे। इसके साथ साथ वो जो है महाराजा रंजीत सिंह के सिपा सलार थे, मिलिट्री कमांडर थे, प्लस ही वाज द रिलेटिव ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। रिलेटिव वो इस तरह थे कि रानी जिंद कौर हु वाज द वाइफ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, उनकी जो बहन की शादी थी वो सरदार जवाला सिंह संधू से हुई थी। तो इस तरह वो मिलिट्री कमांडर थे और उनके रिलेटिव भी थे। तो ये हवेली जो है तकरीबन लेट 18th सेंचुरी में 1780s में 1785 में ये जो कंस्ट्रक्ट करवा के दी थी महाराजा साहब ने सरदार जवाला सिंह संधू को। तो इस तरह ये हवेली तकरीबन 250+ ईयर्स एंशेंट हिस्टोरिकल बिल्डिंग है और आप इसकी ये हालत देख सकते हैं कि खस्ता हुई पड़ी है। इसकी जो मेजर कॉज है ये 1965 और मेजर कॉज है ये 1965 और 1971 की वॉर है मेजर। इसका जो 1965 में जो डिस्ट्रक्शन इसकी बहुत ज़्यादा 90% डिस्ट्रक्शन तब हुई जब डायरेक्ट बॉम्ब फॉलिंग हुई इधर, क्योंकि ये जो है सिक्योर सबसे गांव में ये जगह थी। तो मिलिट्री पाकिस्तानी मिलिट्री भी इधर आके जो उन्होंने डिफेंस सिस्टम अपना बना लिया, वो देखते हुए जो इंडियन PSF और मिलिट्री ने इधर डायरेक्ट बॉम्ब फॉलिंग की, जिसकी वजह से इसकी ये सारी खस्ता हालत हुई है। और हम इसे शुरू से ही प्रिजर्व करने की कोशिश करते रहे हैं अपने ताईं। रिसेंटली हमारी जो है DG वॉल सिटी कामरान लशारी साहब से भी 1-2 टेबल टॉक्स हुई हैं। इंशाल्लाह जो है हम पूरी उम्मीद हैं कि हम इसे प्रिजर्व करने में, हम इसे मेंटेन करने में अपनी जो है वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। थैंक यू ब्रदर।